Hello students, welcome to our channel SGTN's online tutorial. Now students of standard 10th, science के हमने last दो videos में we were talking about periodic classification of elements. In the first video, we talked about Dobrina triads, उनके limitations, and in the second video, we have talked about Newland's law of octaves and its limitation. Now students, many scientists, they continued to search a pattern where they can classify the elements on the basis of their chemical properties. But the most important contribution was from a Russian chemist. Now this Russian chemist, he arranged elements on the basis of chemical properties, and the most fundamental criteria was the atomic mass. So I'm talking about the great scientist Mendeleev, and today in the third video of periodic classification of elements, we are going to study about Mendeleev's periodic table and its limitation. So it's a very important topic and it's going to be a great video. So let's begin Mendeleev's periodic table. So students, as you can see in this photograph, the great Mendeleev. Now the main credit for classifying elements goes to this Russian chemist, Mr. Mendeleev. Students, ये एक बहुत ही important contribution था in the field of chemistry, and for classifying the elements, जो most fundamental property थी वो atomic mass था, and also he was trying to classify the elements on the basis of chemical properties. So please keep these two things in mind: atomic mass and similar chemical properties. On these two bases he was trying to classify the periodic table. ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन शुरू किया, when he started his classification, 63 elements were known to him. I repeat, he was knowing about 63 elements. Now what he did was, इन्होंने इन 63 elements को he took 63 cards and he wrote the name of each and every element on the card. Along with that, he also mentioned the atomic mass and the chemical and physical properties of the elements. अच्छा, जो chemical properties थे ना, उसमें mainly he was concentrating on the compounds which are formed by elements when they react with oxygen and hydrogen. जैसे कोई भी element है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, so what compound it forms? कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो what compound it forms? So he was mainly concentrating कि एलिमेंट जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन से कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. सो दिस केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास, ही वाज राइटिंग ऑन cards and he took 63 cards because there were 63 elements. अब क्वेश्चन है कि सर उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों सिलेक्ट किया? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ये दो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स है, एंड these two, oxygen and hydrogen, they form compounds with most of the other elements. ठीक है स्टूडेंट्स, and that's why he selected oxygen and hydrogen. अब जो 63 कार्ड्स उन्होंने सिलेक्ट किए, फिर धीमे धीमे करके वो कार्ड्स को सॉर्ट आउट करते गए मतलब, so cards having same properties were sorted out, means they were kept aside, and then they were pinned up together on a wall. तो जैसे जैसे वो कार्ड्स को, एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट करते गए, तो उन्होंने ये देखा दैट देयर इज अ पीरियोडिक रिकरेंस. मतलब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट हो रही थी, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेंडलीव ने उनका एक पीरियोडिक लॉ बनाया, और वो पीरियोडिक लॉ क्या था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना,
they are periodic function of their atomic mass. I repeat, the properties of elements are periodic function of their atomic mass. का मतलब ये होता है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होती है एज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास. ठीक है, सो दिस इज व्हाट ही आइडेंटिफाइड. और इन्होंने अपना एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बनाया. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये है that the properties of elements are periodic function of atomic mass. Now students, here is the table of Mendeleev's periodic table on page 83 of your textbook. Now as you can see in this table, ये जो vertical columns है ना, this one, these are called groups, और ये जो horizontal rows हैं, these are called the periods. So these are the groups, vertical, and this horizontal, they are the periods. Horizontal rows are known as the periods. अब स्टूडेंट्स इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. आई विल टॉक टू यू वन बाय वन. सबसे पहले आप लुक एट दिस फर्स्ट वन, हाइड्रोजन. एटॉमिक मास 1.008, देन लिथियम 6.9 समथिंग, बेरिलियम 9.01, बोरॉन 10.81. तो आप देखिए एटॉमिक मास ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है. एटॉमिक मास इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द फर्स्ट क्राइटेरिया वाज द एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे कुछ और भी है. इफ यू लुक प्रॉपरली एट दिस वन, कहीं कहीं आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले है. मैं आपको एक एग्जांपल दूं. देखिए एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास की तरफ ध्यान दीजिए 29.98, एंड लुक एट सिलिकॉन 28.09. ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास ज्यादा है. सो व्हाई इज एल्यूमिनियम बिफोर सिलिकॉन? इज इट अ ड्रॉबैक? इज इट अ ड्रॉबैक? क्या मेंडलीव का ये ड्रॉबैक है? क्या उनसे गलती हो गई है? नो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ ड्रॉबैक. दिस इज द आउटस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ दिस ग्रेट मैन मेंडलीव. अब स्टूडेंट्स ये जो उन्होंने एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का ज्यादा है, उनको पहले क्यों लिखा है? टू अरेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज, टू अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. बिकॉज वो जानते थे कि सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कार्बन के साथ मैच होती है और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज बोरॉन के साथ मैच होती है. सो टू मेक श्योर दैट एवरी ग्रुप हैज गॉट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ही मेड दिस स्लाइड चेंजेस. सो स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड वन मोर? क्या आप एक और ढूंढ सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, देखिए वेनेडियम एंड क्रोमियम. वेनेडियम की केमिकल प्रॉपर्टी 50.94, क्रोमियम 50.20. क्रोमियम का एटॉमिक मास ज्यादा है, फिर भी उसको पीछे रखा है आफ्टर वेनेडियम. रीजन इज वेरी सिंपल, टू मैच सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो ओरिजिनल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, उस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने कुछ गैप्स रखे थे. He kept some gaps. So again, ये gaps उनका ड्रॉबैक मतलब उनका डिफेक्ट नहीं था, but he knew that there will be many more elements which will be discovered in future. Okay, and he wanted that these elements should also get a proper place in Mendeleev's periodic table. तो उसके लिए उन्होंने गैप रखा था. और ये जो गैप रखे थे ना एलिमेंट्स के लिए जो गैप रखे थे, उनका उन्होंने नाम भी दिया हुआ था. एक संस्कृत न्यूमरल यूज किया था उन्होंने, एका. लुक एट दिस एका. एका मीन्स 1 to the name of the preceding element. For example, students, please have a look at this scandium. Please have a look at this scandium. Right? Then look at gallium and look at germanium.
सो एक्चुअली इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे गैप्स थे, गैप्स मतलब खाली जगह थी। तो ये उनका डिफेक्ट नहीं था, ड्रॉबैक नहीं था, बट ये उनका नॉलेज था। उन्होंने क्या किया था, स्कैंडियम की जो जगह थी, स्कैंडियम की जो खाली जगह थी यहाँ पे उन्होंने लिखा था एका बोरॉन, गैलियम की जगह पे लिखा था एका एल्यूमिनियम, एंड इंस्टेड ऑफ जर्मेनियम खाली जगह थी वहां लिखा था एका सिलिकॉन। ठीक है, एका मीन्स दैट यहां पे फ्यूचर में जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टी बोरॉन के साथ मैच होगी, इसीलिए एका बोरॉन। इसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच होगी, इसीलिए एका एल्यूमिनियम। और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी, नाम तो बाद में आया, लेकिन मेंडलीव ने यहां पहले से लिखा था एका सिलिकॉन, मतलब फ्यूचर में यहां जो भी एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ मैच होगी। तो क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल सर। दैट्स वाई दिस मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। यस, द सेम थिंग हैपेंड। जो भी मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वही हुआ। स्टूडेंट्स ये देखिए दिस ग्रेट मैन्स प्रेडिक्शन। एका एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास मेंडलीव ने दिया था इट वाज 68, और फ्यूचर में उनकी जगह पे गैलियम आ गया, एका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम आ गया। एंड सी हाउ क्लोज द प्रेडिक्शन इज ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव ने कहा कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा इट्स फॉर्मूला विल बी E2O3, एंड फ्यूचर में जो गैलियम डिस्कवर हुआ सी द फॉर्मूला एब्सोल्युटली सेम, Ga2O3, सेम विद द फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन ऑल्सो। तो ये एक परफेक्ट एविडेंस है दैट हाउ perfect and useful this Mendeleev's periodic table was. So everywhere his table was accepted and recognized. हाँ, ये बात है कि फ्यूचर में कुछ नोबल गैसेस डिस्कवर हुए लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। नाउ स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस मतलब आई होप आपको याद होगा, एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो फ्यूचर में कुछ नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, राइट। सो फर्स्ट इट वाज अ थॉट दैट वेयर दे शुड पुट दिस नोबल गैसेस इन दिस पीरियोडिक टेबल, इस नोबल गैसेस को इन पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखें। बट देन इट वाज डिसाइडेड दैट दीज नोबल गैसेस शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट ग्रुप। फिर उन नोबल गैसेस का एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया एंड दे वर केप्ट सेपरेटली विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट्स। So such was the great classification of this great man Mendeleev. Yes, students. Now I'll teach you about the limitations of Mendeleev's classification. Limitations. कुछ limitations थी क्या? Now students, जो पहली limitation थी ना, it was the position of hydrogen. Hydrogen की position. अब hydrogen जो element है, it resembles, means it is similar to alkali metals. ओके, हाइड्रोजन आप देखिए कहाँ है, ये रहा। तो ये अल्कलाई मेटल्स की जैसे रिजेंबल करता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये उनकी तरह रिजेंबल करता है। इट इज सिमिलर टू देम एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दिस इन ग्रुप 1। बट स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है ना, ये डाई एटॉमिक है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो H2 होता है, सो हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, जस्ट लाइक हेलोजेंस। जैसे क्लोरीन है Cl2, आयोडीन है I2, ऑक्सीजन O2। सो हाइड्रोजन it is just like halogens because it is diatomic. So the first drawback was that should hydrogen be kept with alkali metals because hydrogen resemble करता है alkali metals के साथ, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम हाइड्रोजन को यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साथ रखें बिकॉज दे आर हेलोजेंस. So it was a dispute, it was a drawback that where should we keep hydrogen, with alkali metals or with halogens. So this was the first drawback of Mendeleev. Okay students, no fixed position was given to hydrogen in the Mendeleev's periodic table. Now the second one,
Mendeleev gave proper place to all the elements, but what about its isotopes? जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं उनका क्या? लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे आई थिंक मेंडलीव का कोई गलती नहीं है, बिकॉज मेंडलीव के बाद लॉन्ग बैक आफ्टर मेंडलीव आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड, राइट, एंड देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स टू बी केप्ट इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. आपको याद है स्टूडेंट्स आइसोटोप्स क्या होते हैं? Isotopes of elements are that which have same chemical properties but different physical properties या different atomic masses. तो isotopes आपने पहले पढ़ा है, isotopes of an element have similar chemical properties but different atomic masses. So the first limitation was no fixed position was given to hydrogen. The second limitation ये है that Mendeleev's periodic table में isotopes के लिए कोई जगह नहीं थी. ठीक है, बिकॉज आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के बहुत बाद. अब दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है? प्लीज लुक एट दिस टेबल स्टूडेंट्स. अगर आप लिथियम और बेरिलियम को देखें तो इन दोनों में जो डिफरेंस है एटॉमिक मास का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 से भी कम. आई एम सॉरी एवरीबडी, it is 3.1, around 3.1 the difference. And if you look at the difference between beryllium and boron, this is approximately 0.2. अगर आप यहाँ डिफरेंस देखें ना इन दोनों का 10.8 और 12, तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 का डिफरेंस. तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट नहीं है. द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स, किसका डिफरेंस? एटॉमिक मास का डिफरेंस. जो एटॉमिक मास का डिफरेंस है ना एलिमेंट्स के बीच में, वो कांस्टेंट नहीं है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने नए एलिमेंट्स और कितने न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे. सो द थर्ड लिमिटेशन वाज दैट मेंडलीव का जो पूरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास था. बट ये जो एटॉमिक मासेस हैं दे डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर व्हेन वी गो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड between these two elements. Right students? So students, my limitations in short I'll repeat it for you. The first limitation was there was no fixed position given to hydrogen. The second limitation was there was no place for isotopes of elements. And third, because this classification was based on atomic mass, and between any two atomic mass the difference is not constant, so it is very difficult to predict. ये बताना बहुत मुश्किल है कि दो एलिमेंट्स के बीच में फ्यूचर में कितने नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे. Yes students, so here we complete Mendeleev's periodic table and its limitations, right? So and this third video of this chapter, periodic classification of elements, is over. Students, in the next video, which is one of my favorite topics, modern periodic table, we will discuss about modern periodic table and many more things related to it, right? So till then, you please study these two topics which are very important for your board exams: Mendeleev's periodic table and its limitations. Fine. So students, I hope that these videos are very helpful to you. Please comment and let me know how you find our videos, and at the same time, as I always tell you, that please do share, because share करने से more and more students will be able to take advantage of our videos. And if you are not subscribed yet, do subscribe it. So keep learning and keep increasing your knowledge, because at SGTNs we believe that knowledge is much more important than your marks. So it's time to say bye bye. Have a nice day.